Okay. Hello everyone. Based on a request, I've decided to teach ECG today. Okay. So this is what the ECG looks like. It has four waves. You can see P, Q, R, S. These waves are very close by and associated with each other. So we are calling it a QRS complex. Okay. ये तीन waves एक साथ है, इसलिए we are calling it a complex together. And we have the T wave. Now, basically, if you just want इसका what this is and you want to learn this for exam, you can do that. But I am also going to explain the concept कि ECG में हम लोग exactly क्या करने वाले हैं. So if you want the concept, you need to watch the full video. Okay. Now, this is atrial depolarization. ठीक है, and this is the ventricular depolarization, and this is the ventricular repolarization. When we say depolarization, it means contraction. Okay, wait, I'll write it properly. When we say depolarization, it is contraction. One more word for contraction is systole. Okay, similarly, what will be नाउ रीपोलराइजेशन मतलब वो पोलराइज था, उसको डीपोलराइज किया, फिर वो वापस पोलराइज हुआ, उसको हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन. ओके, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर राइट नाउ. इतना तुमको समझ गया, यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई से पी, अरे व्हेन आई से द पी वेव, अरे यार, when I say that the P wave is a result of atrial depolarization, I mean P wave is formed when the atrium contracts. Okay. After that, this QRS is ventricular depolarization, because when the ventricles will contract and they will pump the blood into the aorta. Okay. And then we have the T where the ventricular depolarization, ventricles will relax. Okay. सो दिस इज द PQRS कॉम्प्लेक्स. ये तुमको बार 2-3 बार ड्रॉ करो, रट जाएगा. एग्जाम में वैसे का वैसा लिख दो. यू राइट दिस 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 ऑल दिस. दिस इज द इंटरवल, मतलब सी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, देन फॉर सम टाइम द ब्लड विल बी फ्लोइंग इनटू द वेंट्रिकल्स and then the ventricles will contract. There is a time which will be given to you. The cardiac cycle का time होता है, that how many seconds it lasts. So if you see that, you will understand. So now the atrium contracted, the blood is flowing into the ventricles and then the ventricles will contract. So ये जो space है, that is the time between the atrial contraction and the ventricular contraction. Okay. So this is the basic thing which you need to know. ये एग्जाम में लिखोगे, मार्क्स मिल जाएगा. Now I am going to explain what is the concept behind ECG. For that, let me first explain the blood flow towards in the heart. You will understand it by, see, heart अपना जो ये है, ये वेना cava है. Okay, ये है inferior vena cava. This is superior vena cava. So no, this is the pulmonary. This one is the superior vena cava. So ये जो vena cava है, it will collect blood from the body which is flowing in your body. Now when the blood was flowing through your body, all of your cells, your organs, उनके पास जो भी था, ग्लूकोज था या फिर कोई बाय प्रोडक्ट था, वो उन्होंने ब्लड में डाल दिया है. ओके, सो दिस इज अ वेरी deoxygenated blood, because the blood was carrying hemoglobin and oxygen. ये उसने cells को दिया है for the cells to do their metabolism. Okay, so this is a first of all deoxygenated blood, plus it also has many products in it. So now this, ये ऊपर upper body से यहाँ से blood आएगा, यहाँ से blood आएगा, it will be poured here, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा, oxygenated blood. And no, एक second, see what was I saying. So this came from here and it will go out from here. Where will it go? To the lungs for oxygenation. ठीक है, oxygenation से आएगा वापस
So यहाँ से आएगा अंदर in this atria, then it will go here. Now we have oxygenated blood. This oxygenated blood देखो ये red दिखाया है. Then this is the aorta which will take it to the body again. तो body से bad गंदा वाला blood यहाँ पे आया, इसमें गया, यहाँ से lungs में गया. lungs में तुम breathe कर रहे हो, alveoli में oxygen concentration है, वो blood को hemoglobin जो खाली हो गया है oxygen सबको दे के आया है, वहाँ पे oxygen from the lungs it will be given to the blood, then the blood will come back through this. ये जो है ना इन दोनों का भी opening यहाँ है, okay, इन दोनों का opening यहाँ है. So blood will come again, it will fall in the ventricles and it will be here. So now the thing is your atria is contracting, your अरे रे वही चला गया. It's okay. So your atria is contracting, your ventricles are contracting. So basically they are doing, you must have studied, right, sliding filament theory, how muscles work. Now if something is contracting, if something is contracting, now for example if I am put your hand in hot water, you pull your hand back. Now that is also a type of muscle contraction. Your muscles are moving. Now how does that happen? You must have studied it. तुम्हारा stimulus आया. See, this is the image. This is from my notes. Yeah. See, you can see here stimulus तुमको लगा, फिर वो क्या हो जाएगा? Afferent से efferent से, एक second. I got confused. इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो स्टिमुलस है उसका पहले ब्रेन तक लेके जाएगा, फिर ब्रेन से वापस आएगा, ठीक है ना, इफरेंट में आएगा वापस. सो दिस गोज टू द ब्रेन एंड द ब्रेन इज सिग्नलिंग अ मसल टू मूव बैक. So heart, first of all you must have seen that heart is myogenic in nature. If you remove the heart outside the patient's body also, the heart will keep beating because the heart doesn't wait for brain signals. Okay, the heart is myogenic, it is creating its own signals. Now how do we say, अभी जब हम लोग बोलते हैं ना कि ब्रेन ने सिग्नल दिया मसल को पीछे लेना है, ये क्या हो रहा है बेसिकली? नाउ यू मस्ट हैव स्टडीड एफरेंट नर्व्स, इफरेंट नर्व्स. तो ये न्यूरॉन्स है. तो what do these neurons do? Now neurons का जो बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन्स का बाहर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे ये ऐसा है, अंदर है माइनस चार्ज, बाहर है प्लस चार्ज, ठीक है. जब स्टिमुलस आता है a part of it will get depolarized. Depolarized मतलब ऊपर का प्लस है जो नीचे चला जाएगा, नीचे का जो प्लस है वो ऊपर चला आएगा. This became depolarized, ठीक है. and rest of all is अभी भी polarized. फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, this will shift, ठीक है. so this is what is shifting, the message is shifting, आगे आगे सरक रहा है वो न्यूरॉन से to reach the target, ठीक है. अभी तुम्हारा ब्रेन है तुम्हारे हेड में, हेड का साइंटिफिक नेम cephalon, ठीक है. and inside the cephalon you have a brain, that is encephalon. so encephalon से वो तुम्हारे फिंगर्स तक है, तुम्हारे टोज तक मैसेज भेज रहा है, तो इट शुड मूव फॉरवर्ड ना. तो ऐसे ही मूव फॉरवर्ड होता है. स्टिमुलस ने इसको डिपोलराइज किया, ये इसको करेगा, ऐसे कर करके आगे बढ़ेगा. नाउ एज सून एज दिस सेगमेंट विल डीपोलराइज द नेक्स्ट सेगमेंट, देखो यहाँ से यहाँ पे ये डीपोलराइज हो गया और ये वापस पोलराइज हो जाएगा. अभी वापस पोलराइज होने को हम लोग क्या बोलते हैं, रीपोलराइज. तो ये हो गया रीपोलराइज, इसने इसको डीपोलराइज किया, ये इसको डीपोलराइज करेगा, ये हो जाएगा रीपोलराइज. देखा, ये दोनों रीपोलराइज हो चुका है और ये डीपोलराइज है. एंड देन बाकी सब डीपोलराइज हो जाते हैं वंस द मैसेज हैज बीन सेंट. तो एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल जैसा पहले था, है ना. देखो सेम हो गया. सो दिस हैपेंस ऑन द ये ब्रेन से सिग्नल जाएगा वापस इस पे जाएगा. तो हार्ट डजंट वर्क दैट वे. हार्ट इज क्रिएटिंग इट्स ओन सिग्नल. हार्ट खुद को सिग्नल देता है ऐसा करने का. नाउ हार्ट इज डूइंग एवरीथिंग ऑन इट्स ओन, बट लेट मी टेल यू what is happening here. You see the charges are shifting, charges are moving, माइनस था फिर प्लस हो गया, ये हो रहा है, चेंज हो रहा है. बेसिकली they are charged ions, okay, sodium and potassium, which cause the change in the plus and minus sign, ठीक है. so movement of charge is called current. चार्ज मूव हो रहा है, it's called current. बट ये बहुत माइन्यूट चार्ज है, इतना बड़ा चार्ज नहीं है. we call it impulse. इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, क्योंकि ये चालू हुआ. इम्पल्स है वो जो ट्रैवल कर रहा है.
सो नाउ व्हाट हैपेंस इन हार्ट, हार्ट को एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो ऐसा कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. देयर विल बी सम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच इज ट्रैवलिंग टू द एट्रिया एंड टेलिंग द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट, विच इज वाई इट कॉन्ट्रैक्ट, विच इज कॉल्ड एट्रियल डीपोलराइजेशन. ठीक है. सिमिलरली वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, कोई तो इम्पल्स है जो वेंट्रिकल्स को बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट करो, विच इज वाई इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग. ओके. सो आई हैव एन इमेज. This image is from shala.com. Okay, these are not my images. My image is only this one. This is from my notes. I have made it to understand how nerve impulse works, and it's explaining it really well. Okay, what is depolarization, what is polarization, है ना. Now this image. Now heart has something called as SA node, AV node, bundle of His and Purkinje fibers. Now what, ये सब क्या है, ये सब हार्ट का ब्रेन है ऐसा समझो. इट इज स्टार्टिंग द इम्पल्स. तो ये ऐसे नोड तुमको यहाँ दिख रहा है, साइनोएट्रियल नोड इसको बोलते हैं. इस नोड पे इम्पल्स क्रिएट होगा, वो इम्पल्स एट्रियल मसल्स को बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करो. तो व्हाट वी आर डूइंग इन ईसीजी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ओके. एंड ईसीजी हम लोग जो ड्रॉ करते हैं पेपर पे, एक ग्राफ पेपर पे रहता है वो, टू शो इट इज बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वोल्टेज. तो जो हम लोग ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी. ओके. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर बेसिकली फाइंडिंग आउट वो इम्पल्स कि तुम्हारा साइनोएट्रियल नोड कब ये इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, आई टोल्ड यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से चार्ज चेंज हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. तो हम लोग ईसीजी में मशीन लगा के हम लोग ये मेजर करते हैं कि तुम्हारा एसए नोड ने कब सिग्नल दिया तुम्हारे तो जब एसए नोड सिग्नल देगा तब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो वैसे ही वी आर सेइंग दैट इट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन. फिर कब तुम्हारा एवी नोड ने सिग्नल दिया, तुम्हारा सिग्नल पर्किंज फाइबर्स पे कब गया, तो दैट विल गिव अस अ ग्राफ कि कैसा सिग्नल ट्रैवल हो रहा है, कितने टाइम में ऐसा वाला मिलेगा, ऐसा वाला ऐसा मिलेगा कि अभी एक सिग्नल आया, फिर ऐसे फटाक से 2-3 सिग्नल आए, फिर और एक सिग्नल आया. तो दिस विल हेल्प अस टू फाइंड आउट इफ द हार्ट इज वर्किंग प्रॉपर्ली. अगर हमको पता चला कि भाई एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर बहुत टाइम बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है. अगर बहुत फास्ट सब हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है. अगर इसमें कुछ रिदम ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, तो अरिथमिया है, कुछ तो प्रॉब्लम है. अगर उसका ये हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रहा है तो इट इज़ टैकीकार्डिया. अगर बहुत स्लो हो रहा है तो इट इज़ ब्रैडीकार्डिया. सो ऐसे दिस इज यूज्ड टू सी इफ ऑल द इम्पल्सेस आर प्रेजेंट एट द राइट टाइम, और सब सही टाइम पे हो रहा है कि नहीं. ये चेक करने के लिए वी डू ईसीजी, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू डिटेक्ट वेरियस कार्डियक डिसऑर्डर्स. ओके. सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे इम्पल्स आएगा, एट्रिया कॉन्टैक्ट करेगा, इम्पल्स विल बी ट्रैवलिंग. कैसे इम्पल्स कैसे ट्रैवल करता है, वही पोलराइज करके डीपोलराइज करके चार्ज शिफ्ट हो रहा था वैसे ही. सो इट विल मूव, इट विल गो टू द बंडल ऑफ हेयर्स, इट विल गो टू द पर्किंजे फाइबर्स, एंड फिर वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वैसे ही ब्लड पुश होगा. सिमिलर थिंग विल हैपन हियर कि ये जो है ये ऐसे ये भी, ये देखो अभी ऐसे नोड यहाँ है, पर ये भी ऐसे नोड के सिग्नल्स पे ही काम करता है. ठीक है. ऐसे नोड विल कॉन्ट्रैक्ट ना, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ऐसे नोड वर्क फॉर बोथ एट्रिया, ऐसा लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग नहीं है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू से. ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ सी, if you explain what is happening like what I said in the entire video, that would be very amazing. Okay, like you know what is that and you will never ever forget. But अगर तुमने एग्जाम में ये ड्रॉ कर दिया, ये 4 बॉक्स लिख दिया रट्टा मार के, तुमको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग खाली है, तुम भूल जाओगे. So it's actually better if you understand what is happening in an ECG and why it is used and everything. If you've understood well, write it in your own words, you will get marks, and that is more beneficial than just learning it and writing. So I hope it is understood. What is this, what impulse we are calculating, why is there a impulse, ठीक है, impulse कैसे आया, impulse किसने दिया. I have explained everything. Keep sending me such requests कि कौन सा topic चाहिए, then I'll be able to make quality videos. Okay, yeah, thank you.